Good morning, everyone. Any questions from what we discussed yesterday? Hello, am I audible? Yes, sir. Okay. So we discussed this uh, valuation is about the worth. And the process of determining the worth is valuation. This is also what we discussed yesterday. Uses of valuation. This is useful for any stakeholder. Could be existing owner, could be potential buyer. This also we discussed yesterday. It's a relative and subjective context, which means for one person the value could be X and for the other person the value could be Y. There is no fixed method to determine the value. And that's the reason why the answer comes out to be different. Valuation methods, there are three different categories of valuation methods: income approach, market approach, and cost approach. So what is income approach? Income approach is the approach where we are valuing something basis the future anticipated benefits or income. Okay, and this is what we discussed yesterday. तो मैंने इसको आपको डिफरेंट वर्ड्स में इस मॉडल में कन्वर्ट कर दिया है. तो जो ये हमने किया था कल, ये इनकम अप्रोच ही थी. क्योंकि दिस इनकम अप्रोच इज आल्सो अबाउट फ्यूचर बेनिफिट्स, करेक्ट, which is also called as DCF. तो इनकम अप्रोच, DCF, ये सब वैल्यूएशन का एक ही मॉडल के अलग अलग नाम है. ठीक है. So what we're doing right now, or what we started yesterday, is an income approach, which is DCF. What is DCF? DCF is discounting of the cash flows. इसके तीन steps होते हैं: future benefits, converting those future benefits into monetary value, and then that monetary value is converted into a present value.
And if I remember correctly, when we had those Excel sessions, I think we've discussed what is discounting and compounding. Is that right? Have we discussed discounting and compounding? Yes. Okay. So एक बार वो रिवाइज कर लेना, ठीक है? Those who don't remember that concept that we discussed, but just to refresh your memory, the discounting is when you convert future value into present value. This is called as discounting. Or when you convert present value into future value, this is called as compounding. देखिए यहाँ तक कोई डाउट है तो एंड आपको याद भी होगा कि हमने डिस्काउंटिंग और कंपाउंडिंग के फॉर्मूले भी डिराइव करे थे. डिस्काउंटिंग का फॉर्मूला हमने कहना PV is equal to future value upon 1 plus R raised to power T. और कंपाउंडिंग का क्या था? Future value is equal to present value into 1 plus R raised to power T. ये मैंने आपको डिराइव कराया था दोनों फॉर्मूलेस एक्सेल के सेशंस में. एक्सेल के सेकंड सेशन में शायद किया होगा, सेकंड या थर्ड में किया होगा. सो वो प्लीज एक बार रिफ्रेश कर लेना इन केस यू डोंट रिमेम्बर दिस. This is very important concept. Particularly discounting is what we will use very heavily into this entire evaluation. Into most of the evaluation sessions would be linked or dependent on this discounting concept. Any questions so far? Okay. So this discounting is this. एंड ये डिस्काउंटिंग करने के लिए हमें एक R चाहिए होता है. एंड दिस R is called as discounting rate. What is discounting rate? Interest rate which is used for discounting. Interest rate which is used for discounting is called a discounting rate.
वैल्यूएशन में discounting rate will be our cost of capital. Now let's understand this. What is discounting rate? Anybody can tell me, because I think we discussed this, but just I will spend a couple of minutes on discounting rate again. हाँ जी, किसी को याद है डिस्काउंटिंग रेट क्या होता है? Of course, it's the interest rate which is used for discounting, जो यहाँ लिखा है. फिर मैंने couple of things आपको और भी बताई थी इसके बारे में. हाँ जी, what is discounting rate? किसी को याद नहीं है डिस्काउंटिंग रेट? Just to get the present value. करेक्ट. सो वो तो To pull that any future cash flows we can pull to get the present value through a certain करेक्ट करेक्ट दैट इज कॉल्ड अ डिस्काउंटिंग रेट. बट मैं ये पूछ रहा हूँ कि डिस्काउंटिंग रेट मैं कौन सा इंटरेस्ट रेट लूँ? सो माय क्वेश्चन इज, लेट मी ट्राई एंड रीफ्रेम माय क्वेश्चन. तो ये जो आपने बोला ये करेक्ट है, इसमें कोई ये गलत नहीं है, बट मैं कुछ थोड़ा सा और पूछ रहा था. सो discounting rate is what? Interest rates which is used to convert future value or pull future value to present value. This is what you just said. Okay, so that's right. Now, which interest rate should I use as a discounting rate? Which interest rate? That is my question. What's the prevailing rate through which it's Prevailing rate कौन सा? Inflation लो, in FD लो, no market लो, कौन सा है prevailing rate? Which prevailing interest rate should I take as my discounting rate for the calculation? it's what you want to do is, means for example, if you want to calculate like for an FD calculation, that this is much is I want to get amount at 5 years, and now what will be my present value of investment for that? Then the prevailing rate will be the interest rate associated with it. The bank rates are and all that. Okay. So discounting rate जो हम consider करते हैं, that is your expected rate of return. So which means when you go and open an FD, और FD का अगर आपको डिस्काउंटिंग करना है या फॉर दैट मैटर कंपाउंडिंग करना है, so उसके लिए मैं वो इंटरेस्ट रेट यूज करूंगा which is my expected rate of return from that FD. ठीक है? Now, which means अगर मुझे इक्विटी वैल्यूएशन करना है, ठीक है, if I have to do equity valuation, एक किसी कंपनी का, जैसे कंपनी ए का स्टॉक का वैल्यूएशन करना है या इक्विटी शेयर्स का वैल्यूएशन करना है, ठीक है?
अगर मुझे कंपनी ए के इक्विटी शेयर्स का वैल्यूएशन करना है, मुझे करना है, आई वांट टू इन्वेस्ट, तो मैं कौन सा डिस्काउंटिंग रेट लूंगा? मैं डिस्काउंटिंग रेट होगा मेरा माय expected rate of return, my expected rate of return from this stock, which is of course stock A. This expected rate of return will be used as my discounting rate in my valuation calculation. यहाँ तक कोई डाउट? देख लीजिए, कोई डाउट है तो पूछो। Are we talking about the individual of this my expected rate of return? No question in this? What is this expected? Sorry, The what is? context of this? What is the context of this expected rate? No, I didn't get the question. Do it has any relevance with the market? Relevance from the market means, so of course, if so suppose, let's assume pandemic चल रहा है, correct? Just try and recollect the in India में the month of April, May, June, correct? Those were the month which was where the pandemic effect from the perspective that the kind of restrictions that were imposed were at the peak. If you are investing into equity shares of any company in those months, your expected rate of return would be different from the expected rate of return that you would expect if you're investing into same equity shares today, correct? So your expected rate of return, yes, is heavily dependent on a lot of factors जो भी आपको मैं कराऊंगा, which where the one of the factors is the market performance and what's happening in the market. So the answer is yes. पारुल कुछ पूछ रहे थे अभी? Yes, I was also asking the same. So it would depend upon the company's performance, or Yes, not only company's performance, it will depend on company's performance. It will depend on market performance as well. okay. करेंगे अभी इसका कैलकुलेशन in next 5 minutes we'll start of this. ये उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसका नंबर क्रंचिंग कैसे करते हैं. Any other question? Hello. Hello. Yeah. So ये expected rate of return cost
कॉस्ट ऑफ इक्विटी होगा या फिर और कुछ? कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी मैं आ रहा हूँ, अभी मैंने कराया नहीं कॉस्ट ऑफ इक्विटी, बट हाँ वही होगा, बट अभी मैं कराना है। हाँ, एनीथिंग एल्स? Okay. For example, if you're an employee, and let's assume in company X, in company X, what is your expected rate of, what is your expected return? Your expected return is your salary, your ESOPs, ठीक है, your bonus plus other perks जो आपको मिलते हैं, ठीक है, correct? Now all these are cost to the company. हाँ या ना? So with the same logic, can I say, अगर आप इन्वेस्टर इन कंपनी ए हैं, your expected return will be cost for the company. हाँ या ना? Yes.
Hello? Hello? Am I audible? Yes, last few minutes. You're not Yeah, able yeah. to listen. I lost the internet connection. Sorry. So yeah. So we were yeah. So if I'm an investor in company A, and I am expecting a return from a company, let's assume, suppose, so just for the sake of discussion, I expect 10%. So if I expect 10%, is this the cost for the company? Because return for someone is a cost for the other person, correct? So can I say if I expect 10% return, from my equity investment in company A, then for company A, this 10% is cost of equity? हाँ या ना? Without it पूछिए. You're talking about the employee prospects. Can you please repeat the question? So employee prospect से मैं नहीं समझा रहा हूँ, investor perspective से बता रहा हूँ. But employee वाला मैंने एक example लिया था. So अगर मैं I'm working in an organization as X, ठीक है, I'm an employee in organization X. So what my expected return is my salary and perks. So which means my expected return is the cost to the company. No. I know. Means you can expect anything, no? हाँ, मैं जो भी expect करूँगा. It cannot be a cost to the company. They cannot put in their books of account. क्यों? अच्छा, जो Why, सैलरी yes. आपको मिलती है, वो जो सैलरी मिलती है No, और जो बोनस मिलता है, expectation. I'm not saying the actuals. What is going on? I'm saying the what is वो your आपकी next year एक्सपेक्टेशन ही expectation? आपकी एक्सपेक्टेशन ही है. क्योंकि वो अगर एक्सपेक्टेशन जैसे फॉर एग्जांपल, if you're currently getting 10 rupees and you're still working in that organization, that is your expectation. Company is meeting, because if your expectation is 20 and company is giving you 10, you will leave the organization. मैं वो unrealistic scenarios और expectation की बात नहीं कर रहा, where you expect कि okay, I will get 50 crores and the company pays you 2 lakh rupees. That is not what I'm saying. जब तक आपको मार्केट में कहीं और से कोई ऑफर नहीं है, so what you're getting is equivalent to your expectation. Otherwise, you will leave the job. Yes. That's the way. Case. That's the way the assessments are done. जो आपकी expectation है, आपको उतना पैसा कंपनी दे रही है और आप ऑफिस जाके काम कर रहे हो, तो वो आपकी expectation ही है. So suppose today you're getting 10 rupees and you're working, you're going on the office on a regular basis and doing your duties, whatever is required. So company is paying your expectation. और वो 10 रुपीज कंपनी क्यों दे रही है दीपक आपको? बिकॉज जब आपने कंपनी ज्वाइन करी थी, आपने 10 रुपीज मांगे थे, नेगोशिएट करके उस पर हाँ किया था. कंपनी ने जबरदस्ती नहीं करी. तो व्हाट यू एक्सपेक्टेड इज व्हाट कंपनी गिव टू यू. हाँ है ना? In that context, it's yes. ठीक है. तो सिमिलरली अगर मैं कंपनी में इन्वेस्टर हूँ और मेरी एक्सपेक्टेशन 10% है, मुझे 10% रिटर्न मिलना चाहिए कंपनी से, ठीक है, कंपनी मुझे वो 10% रिटर्न दे रही है, तो वो कंपनी के लिए कॉस्ट हो जाएगा. कॉस्ट ऑफ व्हाट? कॉस्ट ऑफ इक्विटी इन्वेस्टमेंट. बिकॉज मैं इन्वेस्टर हूँ, मैंने इक्विटी इन्वेस्ट किया कंपनी ए में. कंपनी ए को अगर इक्विटी शेयर्स, इक्विटी इन्वेस्टमेंट चाहिए, इक्विटी फंड्स चाहिए मुझसे,
तो उनको 10% कॉस्ट बियर करनी पड़ेगी. दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड एज कॉस्ट ऑफ इक्विटी. यहाँ तक मैंने एक्सप्लेन किया. कोई डाउट है तो पूछिए. Is clear? The investor expected rate of return is equal to the cost. Invest expected rate of return. Company hence expected rate of return from an equity investment is equivalent to the cost of equity. Hence हमने क्या डिस्कस किया अभी तक? डिस्कस किया डिस्काउंट रेट क्या होता है. डिस्काउंट रेट इज एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न. और एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है? कॉस्ट ऑफ कैपिटल. Hence डिस्काउंटिंग रेट जो मैं यूज करूंगा वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल होगा. Good out. Screen change हो. Can you see my screen? अभी मैंने PowerPoint डिस्प्ले किया है. और are you still? No. No, sir. No. और एक्सेल में मैंने अभी कुछ येलो में हाईलाइट किया. वो दिख रहा है आप लोगों को? No. Now can you see my screen? No, sir. Can you see my screen? Yes, sir. Yeah. Okay. So yeah, see the section which I've highlighted in yellow. So discounting rate is expected rate of return. This is what we started discussion with.
And now we've also concluded the expected rate of return is nothing but the cost of capital. Hence, discounting rate is my cost of capital. So for valuation, I need discounting rate. For which I will calculate my cost of capital. Any questions over? The cost of capital would be any future expenses incurred to maintaining the capital. Repeat karo Parul, what you said. To maintain the capital of the firm, any future expenses incurred, maybe ESOPs or dividend, that would be the part of cost of capital. हाँ, जो आप अपने शेयर होल्डर्स को दोगे, हम एम्प्लॉय की कॉस्ट नहीं डिस्कस कर रहे हैं, बट यस अगर आप एम्प्लॉय के पर्सपेक्टिव से कॉस्ट करोगे तो ऑफ कोर्स, बट यहाँ पे पारुल व्हाट वी डिस्कसिंग इज अ कंपनी जो भी अपने शेयर होल्डर्स को रिटर्न देती है, वो क्या फॉर्म हो सकता है? डिविडेंड हो सकते हैं, बोनस शेयर हो सकते हैं, कैपिटल एप्रिसिएशन हो सकता है। जो भी रिटर्न एक कंपनी अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स को देती है वो उसकी कॉस्ट है ना, उनके लिए तो कॉस्ट ही है ना। लेट मी गिव अनदर एग्जांपल. You open an FD. Let's assume I am a bank. ठीक है. So you come to my bank and say I want to open an FD, और आपने FD open कर दिया, and आपसे मैंने एग्री किया, okay I will give you 7% rate of return as an FD. So you said कि हाँ मेरे को 7, मतलब आपने FD ओपन करने से पहले मुझसे पूछा कि सर कितना रेट ऑफ रिटर्न है, तो मैंने कहा 7% मैम पर एनम। तो आपने कहा ये आई एम ओके, आई वांट टू इन्वेस्ट, मैंने आपके लिए एफडी ओपन कर दिया फॉर 1 ईयर। अब पारुल आपकी एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न फ्रॉम दिस एफडी कितना है? What return you will expect after 1 year from this FD? 7%. Is that 7% a cost for that bank? बैंक को पे करना पड़ेगा ना वो। सो वो लेट्स वहां आपने 1 लाख रुपीज एफडी किया, तो वो बैंक के लिए उस 1 लाख रुपीज की कॉस्ट 7% है, करेक्ट? Yes. Can I say that 7% is cost of capital for the bank? What is cost of capital? वो कैपिटल रेज करने के लिए जो आपको कॉस्ट इंकर करनी पड़ती है। So for bank to raise 1 lakh rupees from customers through FD, the bank has to pay 7%. That's why that becomes cost of capital. Parul, any questions over? Oh, no, I was just a little confused between expenses and how it became the cost. So it is. अब समझ आया? मैं कोई एग्जांपल, लेट्स से आपके घर पे कोई मेड है, कोई ड्राइवर है, कोई ऐसा कोई सपोर्ट हेल्पिंग हैंड है, ठीक है? आप जो उसको सैलरी देते हो, वो उसका एक्सपेक्टेड रिटर्न है ना मंथली, कि मंथली वो अपने बॉस से या अपने एम्प्लॉयर से उतना रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहा है, करेक्ट? लेट्स से दिवाली पे या न्यू ईयर पे आप उसको कुछ एक्स्ट्रा बोनस देते हो, तो वो भी तो दिवाली पे एक्सपेक्ट करते हैं कि ओके मुझे इतना बोनस मिलेगा, या मुझे एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट मिलेगा, या मुझे एक स्वीट बॉक्स मिलेगा, तो वो सब एक्सपेक्ट करता है आपसे। वो आपके लिए कॉस्ट नहीं है पारुल? कॉस्ट फॉर Yes. keeping him motivated to work for you. Yes, got it. Hello. Yeah.
सर ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल कंसीडर कैसे किया जाएगा? जैसे किसी कंपनी का किसी इक्विटी का कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10% है तो 10% क्यों हुआ? हाँ वो करेंगे ना अभी, रुक जाओ 5 मिनट, वो कैलकुलेशन कराऊंगा। मैं भी सिर्फ इतना ही बता रहा हूँ कि डिस्काउंटिंग रेट इज एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, एक्सपेक्टेड रेट इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, बस। अगर आप इस पे हाँ करते हैं कि हाँ you agreed to this, you're convinced on this, no question, then I will go to the calculation also. रुक जाओ 5 मिनट में ये भी स्टार्ट हो जाएगा। ओके सर, ओके। Any other doubt in the portion or the section which I've highlighted in yellow? Okay. Just small advice. I don't know whether I mentioned this yesterday or not. This valuation is the most important section of this entire journey. If you if you're able to pull this off, then I think it's the the effort or the entire reason of starting this journey, I think you will be able to achieve that. So please be focused into these valuation sessions. Be feel free to ask, pay attention, spend some time, not some time, good time during the week as well to revise those concepts. And last and important piece, ensure you keep and you prepare your notes well. I leave it to you whether you want to rely on those recording videos, because of course videos will be available, but please understand, जो आप नोट्स अपने हाथ से अपने नोट पैड में नोट्स बनाते हैं उसकी इम्पोर्टेंट, आई एम दैट स्कूल ऑफ थॉट, आई कम फ्रॉम दैट स्कूल ऑफ थॉट, ठीक है। सो दैट जस्ट शेयरिंग दैट थॉट, रीजन बीइंग मैं आपको वैल्यूएशन काफी अलग तरीके से आपको कराया जाएगा, ठीक है। आई विल मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स आई विल डू एग्जैक्टली द सेम वे आई डू फॉर माय सीएफए बैचेस, ठीक है, which will be very much on the advanced part, ठीक है। सो डू नॉट एक्सपेक्ट कि वो सेम चीज सेम फॉर्मेट में आपकी स्लाइड्स में लिखी होगी। ऑफ कोर्स वो टॉपिक सेम ही होगी, बट इन टर्म्स ऑफ जो केस स्टडी या एग्जांपल्स उसके आसपास आप देखोगे वो काफी एडवांस्ड होंगे। सो जस्ट ट्राई एंड कीप अ बैलेंस एंड ट्राई एंड इंश्योर जो भी चीज आपको लगता है इंपॉर्टेंट है फॉर योरसेल्फ, यू टेक योर कॉल, ट्राई एंड कीप योर नोट्स, ट्राई एंड इंश्योर दैट यू रिटेन इट फॉर, ट्राई एंड गेट्स इन सम फॉर्मेट जिससे आप ज्यादा लंबे समय तक उसको रिटेन कर सके। वो फॉर्मेट क्या है, आई लीव इट टू यू, ठीक है, बिकॉज ये काफी इंपॉर्टेंट है, स्पेशली दोज हु आर प्लानिंग a career into this side of the industry, काफी यूज होगा। सो जो भी आपके मॉडलिंग और इक्विटी रिसर्च और वैल्यूएशन ओरिएंटेड डिसेंट जॉब्स भी होंगे, उन पे आपको सब जॉब्स पे इन्हीं पार्ट्स पे टेस्ट किया जाएगा जो आप कर रहे हो या आप करने वाले हो, ठीक है। सो प्लीज 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 पे फुल अटेंशन इनटू दीज parts of these valuation sections. So coming back to this point, so discounting rate is my expected rate of return. Expected rate of return is my cost of capital. What is cost of capital? Cost of capital is कि कंपनी जो कैपिटल रेज करती है उस पे जो कॉस्ट इनकर करती है, दैट इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। वो क्या कॉस्ट इनकर करती है, वो कॉस्ट उसके शेयर होल्डर्स की या उसके इन्वेस्टर्स की एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न होती है। सो हमने ये कंक्लूड कर लिया है expected rate of return for expected rate of return
for equity shareholders और मैं कौन से शेयर होल्डर की बात कर रहा हूँ, कंपनी ए के शेयर होल्डर्स की बात कर रहे हैं, will be cost of equity for company A. This is what we have concluded so far. कुछ पूछना है इसमें? Okay. Now, सॉरी, ये yeah. वैल्यूएशन ऑफ मतलब किस चीज की वैल्यूएशन के लिए हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल यूज करेंगे? हमें वैल्यूएशन के लिए डिस्काउंटिंग करने की जरूरत है पारुल? बट मतलब वैल्यूएशन ऑफ द कंपनी, Valuation of equity share of a company. इक्विटी शेयर्स, ओके। क्योंकि वैल्यूएशन तो हर सेगमेंट का, हर चीज का हो सकता है ना। मैं जो भी पार्ट की डिस्कशन कर रहा हूँ, वैल्यूएशन ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ ए कंपनी। ओके, जैसे रिलायंस है, आज मार्केट में आपको रिलायंस खरीदना है, रिलायंस का शेयर खरीदना है, तो अब रिलायंस का शेयर खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए, वो डिसीजन कैसे करेंगे? कल की क्लास में जो हमने डिस्कशन किया था, व्हेन यू गो टू द शॉप एंड आई गिव यू एन एग्जांपल ऑफ शर्ट का लिया था हमने, ठीक है, शर्ट का। सो whether you should buy the shirt or not, and then आपने कैसे डिसाइड किया था पारुल कि आपको खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए? आपकी जो एक वैल्यू है, सो लेट्स अज्यूम आपने उस शर्ट की वैल्यू 2000 रुपीज निकाली थी और शॉपकीपर ने बोला मैम ये 5000 रुपीज का प्राइस है, तो आपने कहा ओके 2000 की वर्थ की चीज आपको 5000 में मिल रही है, तो आई शुड नॉट बाय। ऐसे ही डिसाइड किया था ना आपने? यस यस, ठीक है, ठीक है। अब और जस्ट अंडरस्टैंड कि या वेयर वी आर अंडरस्टूड, हेडिंग। या दैट्स ओके। नाउ अब मैं आपको बोल रहा हूँ, लेट्स अज्यूम रिलायंस का इक्विटी शेयर मार्केट, जस्ट गिव मी अ सेकंड, मुझे फोन आ रहा था। Yeah.
So what we're discussing, they say if you want to invest into, let's assume, equity shares of companies like Reliance. So Reliance के equity shares में अगर आपको invest करना है, Reliance का equity share currently market में 5,000 rupees का trade हो रहा है. Am I audible, Parul? Yes. Okay. So now how will you decide, Parul, whether you should buy the shares of Reliance or not? Exactly the way you decided in the yesterday class whether you should buy the shirt or not. तो उसके लिए आपको दो फिगर्स की जरूरत है, दो नंबर्स की जरूरत है. वन इज द मार्केट प्राइस जो रेडिली अवेलेबल है. आप निफ्टी सॉरी आप एनएससी या बीएससी का प्लेटफॉर्म देखेंगे, उस पर आप उसका प्राइस दिख जाएगा. आज मार्केट्स बंद है बट लेट्स अज्यूम वर्किंग डे है. बट आपको दूसरा पावर नंबर क्या चाहिए? वो वैल्यू चाहिए जो शर्ट वाले एग्जांपल में आपके दिमाग ने, आपके माइंड ने कैलकुलेट करके आपको एक प्रोसेस के थ्रू दी थी. तभी आप कंपेयर करते ना कि रिलायंस ओवर वैल्यूड है कि अंडर वैल्यूड है. पारुल, यू विद मी सो फार? Yeah. तो वो नंबर को कैलकुलेट करना सिखा रहा हूं मैं आपको, जिसके लिए मैंने आपको कहा कि वो प्रोसेस के तीन स्टेप है. ये फ्यूचर बेनिफिट्स, मॉनेटरी वैल्यू एंड प्रेजेंट वैल्यू. तो मैंने अभी फर्स्ट और सेकंड नहीं कराया, मैं आपको पहले थर्ड करा रहा हूँ. थर्ड को क्या बोलते हैं? डिस्काउंटिंग बोलते हैं. जिसके लिए मुझे क्या चाहिए? डिस्काउंटिंग रेट चाहिए. और हमने क्या बोला? डिस्काउंटिंग रेट क्या होता है? कॉस्ट ऑफ कैपिटल होता है. Capital. आपको फ्लो समझ आया हम कहां से कहां पहुंचे हैं और हम क्यों ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल सीख रहे हैं? Yes. Perfect. Thank you. ठीक है. एनीबडी एनी अदर डाउट? ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको कॉन्टेक्स्ट समझ आए, आपको फ्लो समझ आए, बिकॉज ये जैसे से आगे जाएगा ये हैवी होता जाएगा. सो प्लीज you need to understand where we are heading and why we are heading. Okay. This we are calculating for equity. हाँ, अभी के लिए मैंने इक्विटी स्टार्ट किया. Afterwards, we'll calculate for the firm. फर्म भी कराऊंगा मैं. अभी एक एक करके स्टार्ट कर रहा हूँ. तो पहले इक्विटी सीख लेते हैं हम लोग, फिर फर्म भी करेंगे. हेलो Yeah. सर, किसी कंपनी का जो शेयर जो बाय करते हैं, खरीदते हैं, तो वो टाइम पीरियड के लिए खरीदते हैं या फिर कभी कितने भी दिन के लिए भी? कुछ भी हो सकता है. कुछ भी हो सकता मीन्स है. सर, दोनों तरह के इन्वेस्टर होते हैं. कुछ दिन के लिए भी खरीदते हैं और लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए भी खरीदते हैं. तो टाइम पीरियड के बाद जैसे नहीं समझ में आया सर मुझे ये शेयर का कॉन्सेप्ट. नहीं समझ आया? तुम्हारे क्वेश्चन का इक्विटी आंसर शेयर समझ का नहीं आया तो और समझ नहीं आया? मैं क्वेश्चन वन मिनट सर, मैं क्वेश्चन अरेंज कर. सो जो हमारा एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न है, what is expected rate of return? Cost of equity to The the return company. that you expect. हाँ, ठीक है. और आपका जो रिटर्न एक्सपेक्टेशन है, इज दैट लिंक्ड? ओके, छोड़ो, मैं आपको दूसरे तरीके से समझाता हूँ. ठीक है. चलो मैं आपको एक जल्दी से स्टोरी समझा दूं. ठीक है, इसके थ्रू समझते हैं. ठीक है. नाउ सपोज yeah, so let's assume I'm a producer of a movie. ठीक है. I'm a producer of a movie. ठीक है.
सो मूवी शूट हो रही है, ठीक है। so let's assume मुंबई फिल्म सिटी पे सेट लगे हैं, and so let's assume Fazlur is the hero in this movie, ठीक है। फजलू ठीक है ना? I suppose the requirement is, ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट है? यस सर। नो सर। ठीक है। I suppose requirement is he needs to jump from first floor, and he's not ready. तो मैंने कहा ठीक है, मैंने एक स्टंटमैन या डुप्लीकेट को बुलाया, let's assume that is person X, ठीक है। तो आप लोग सब वो X हो, ठीक है, एक्सेप्ट फजलूर, ये मान लो, ठीक है। तो आपको मैंने बुलाया और मैंने आपसे कोई पैसे की बात नहीं करी, मैंने आपको समझाया कि ये शूट है, ये सीन है, आपको फर्स्ट फ्लोर से जंप करना है, मेरे डायरेक्टर ने आपको समझाया। और फिर मैंने आपसे पूछा भाई पैसा कितना लगेगा, मैं प्रोड्यूसर, मेरा पैसा लग रहा है, ठीक है। तो आपने मुझे बोला कि यहाँ ये जंप करने के मैं आपसे 120 रुपीज चार्ज करूंगा। मैंने कहा डन, ठीक है, गो हेड। यहाँ तक किसी को डाउट? Okay, in case no, so suppose the Sunman goes and performs this stunt for us. But at the end of the day of the shoot, everything goes well, no casualties or no issues, everything goes well. He comes to me कि मुझे मेरा पैसा दे दो, तो मैंने उसको 120 रुपीज दे दिया, ठीक है, डन। Let's assume after a couple of days, again there's a requirement where now hero needs to jump from the 5th floor. ठीक है, नहीं सॉरी, ये फर्स्ट था ना, 3rd फ्लोर, ठीक है। तो मैंने कहा ये फर्स्ट फ्लोर से जंप नहीं कर पा रहा था, 3rd से कैसे करेगा? So again we decided to call that same person who did the stunt for us couple of days back. वो आया, अब मैंने उससे पैसों की कोई बात नहीं करी, क्योंकि मैंने कहा अभी तो जंप किया था and we know its price, so he agreed to jump for 120 rupees, so that's okay. Now he goes and now jump from the 3rd floor, everything goes well as per plan. At the end of the shoot he again comes to me and saying मुझे मेरा पैसा दे दो, मैं उसको 120 रुपीज फिर से दे रहा हूँ, वो ले नहीं रहा है, क्या इशू है? अब आप वो एक्स हो, मैं प्रोड्यूसर हूँ, आपके मेरे बीच में कॉन्वर्जेशन हो रही है, तो मैं आपको 120 रुपीज दे रहा हूँ, आप ले नहीं रहे हो, क्यों? रिस्क बढ़ गया ना फ्रॉम फर्स्ट टू थर्ड फ्लोर में। क्या रिस्क बढ़ गया? फर्स्ट फ्लोर में कम कैजुअलिटीज आएंगी, थर्ड में अगर कुछ हुआ तो ज्यादा आएगा रिस्क ऑफ लाइफ। ठीक है, तो कहने से पारुल की जो ये 120 रुपीज है, ये उस स्टंटमैन का एक्सपेक्टेड रिटर्न था फ्रॉम द जंप फ्रॉम द फर्स्ट फ्लोर, यस, एंड एज यू सेड कि रिस्क बढ़ गया बिकॉज ही इज नॉट जंपिंग फ्रॉम द 3rd फ्लोर। कैन आई से द एक्सपेक्टेड रिटर्न इज लिंक्ड टू द degree of the risk? As you take more risk or as the risk involved is more, the expected return is more. यस। So can I close this part to conclude that expected return is linked to the risk? हाँ या ना? किसी को भी डाउट इसमें तो बताइए।
Anji, is this clear? Expected return is linked to the risk or is dependent on the risk. As you increase the risk, the return will go up. So पारुल कितना मांगोगे मुझसे अगर आप ये X हो, so आपने फर्स्ट फ्लोर पे मुझसे 120 लिया था, तो नाउ लेट्स हैव दिस कन्वर्सेशन अगेन. सो आई एम गिविंग यू 120. आपने मना कर दिया. मैंने कहा क्यों? आपने मुझे समझाया कि मेरा फर्स्ट फ्लोर पे रिस्क कम था, थर्ड फ्लोर पे रिस्क ज्यादा है. तो मैंने कहा ठीक है, मेक सेंस. सो कितना चाहिए? तो आपने मुझे लेट्स अज्यूम बोला 160. ठीक है, अब मैं रिवर्स कर रहा हूँ. ठीक है, सो नाउ आई एम एक्स, पारुल यू आर द प्रोड्यूसर ऑफ द मूवी. Parul, is that clear? Now you are the producer of the movie, so you are negotiating. You have to pay the price to me, and I have given you 160 rupees ये price. ठीक है? Okay. पारुल ने मुझसे पूछा कि ठीक है मिस्टर एक्स, आई अंडरस्टूड कि 120 से अब आप 160 चार्ज करोगे बिकॉज रिस्क ज्यादा है. तो बट पारुल ने मुझसे पूछा कि why Mr. X, can you give me the breakup of this 160? Now listen this carefully, this is very important now. So she's asking Mr. X, which is me in this case, कि ठीक है, आई अंडरस्टैंड कि 120 से आप ज्यादा लोगे बिकॉज रिस्क बढ़ गया है, सो दैट मेक सेंस. बट ये 160 कैसे निकाला आपने? ठीक है, गिव मी द कैलकुलेशन ऑफ 160, ब्रेकअप ऑफ दिस 160. नाउ आई एम मिस्टर एक्स, आई एम एक्सप्लेनिंग ये 160 का ब्रेकअप क्या है. प्लीज ध्यान से सुनना. तो मैंने पारुल को बोला मैम पहले मैं आपको 120 का ब्रेकअप समझाता हूँ. ठीक है, 120 का ब्रेकअप है 100 रुपीज for coming to your place and 20 rupees for the jump from the first floor. And now Parul argument is, पारुल बोलती कि आप तो फिल्म सिटी के बहुत पास में रहते हो, मतलब जहाँ पे भी ये शूट हो रहा है उसके जस्ट 2 minutes वॉकिंग डिस्टेंस पे रहते हो. So it doesn't take 100 rupees for you to come here by even if you take a cab. So how is that 100 rupees justified? My response to Parul is, ma'am, this 100 rupees is not my time. So Your voice this is is my opportunity cost. Hello? Audible? Sir, your voice is breaking so much. Okay. That's it. Hello? Is it better now? Yes, yes. yes, sir. It is fluctuating at my end. So so yeah, let me repeat this. So Parul ने मुझसे पूछा, I'm Mr. X. Parul ने मुझसे पूछा, why give me the breakup of this 160 rupees. So मैंने कहा ठीक है, before I give you the breakup of 160 rupees, let me explain you the breakup of 120 rupees. So मैंने पारुल को कहा 100 rupees is for coming to your place. To your place means जहाँ पे वो शूट हो रहा है वहाँ पे. And 20 rupees is for jump from the first floor. So but Parul कहती है कि 100 rupees क्यों? 100 rupees you just stay 2 to 5 minutes walk from this place. So 100 rupees is not justified for as a traveling cost. So I said no, it's not a traveling cost. It's my opportunity cost. And her reaction is, what do you mean by opportunity cost? So मैंने पारुल को बोला कि जो 100 rupees है ये मेरा
रिस्क फ्री रिटर्न है। पारुल ने कहा ये क्या होता है? तो मैंने कहा रिस्क फ्री रिटर्न का मतलब है कि अगर मैं आपकी शूट पे नहीं आता और घर पे बैठा होता तो मैंने घर पे बैठ के 100 रुपए आराम से कमा लिए होते, which means for earning this 100 rupees I don't have to take any risk. Hence if I'm coming to your place, I'm losing away that 100 rupees which I could have earned, hence that's my opportunity cost. तो मैं आपसे वो चार्ज जरूर करूंगा, एटलीस्ट आपसे वो तो जरूर चार्ज करूंगा। पारुल, does this make sense to you? Yes. ठीक है, किसी और को कोई डाउट? ये एक्स के आंसर सब एक्स सब कन्विंस है? So are we done with 100 rupees? सर ये तो प्रोड्यूसर डिसाइड करेगा ना कि पैसे कितने देने हैं। जैसे 120 उसने पहले डिसाइड किया था कि फर्स्ट फ्लोर पे कितने देंगे आपको। हाँ तो तुम प्रोड्यूसर हो, मैं तुम्हें ही समझा रहा हूँ कि भैया मैं 120 क्यों मांग रहा हूँ। 120 में मैंने 100 रुपए का लॉजिक बताया, तो तुम कन्विंस्ड हो एज ए प्रोड्यूसर या तुम्हें कन्विंस नहीं हुआ? सर ये समझ नहीं आया ये रिस्क फ्री रिटर्न। मैं 100 रुपए घर पे बैठे बैठे कमा रहा था, तो मैं तुम्हारे शूट पे आके काम करूंगा तुम्हारे लिए, तो 100 रुपए मैंने सेक्रीफाइस किया ना, तुमसे मांगूंगा ना। और उसके अलावा 20 रुपीज एक्स्ट्रा ले रहा है क्योंकि हमारे पास आ रहा है। 20 नहीं समझाया मनबीत मैंने अभी तक, पहले 100 समझाया, तो 100 क्लियर है आपको? 20 समझाऊंगा अलग से। ठीक है सर। हेलो सर। अब हजूर सर ये रिस्क फ्री रेट जो है मार्केट रेट ऑफ रिटर्न से भी लिंक्ड होगा? छोड़ दो उसको, अभी उसकी बात नहीं कर रहे हैं। ये रिस्क फ्री निकालते कैसे उसे बात नहीं कर। रिस्क फ्री क्या है पहले सिर्फ उतना ही बता रहा हूँ, एक स्टेप आगे मत चलो हजूर। ओके सर, ओके ओके। एनी अदर डाउट? ठीक है, सो आप लोग कन्विंस हो गए एज अ प्रोड्यूसर दैट यस 100 रुपीज नीड्स टू बी चार्ज है। फिर आपने पूछा 20 रुपीज क्या है। मैंने कहा जो 20 रुपीज है दिस इज फॉर जंप फ्रॉम फर्स्ट फ्लोर, so and this is my risk premium. Now, what is risk premium? Compensation for the risk. तो यानी और जो मेरा 120 मैंने आपसे लिया था वो मेरा रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न था। ओके, तो ये मैं रिस्क फ्री को RF लिख देता हूँ, रिस्क प्रीमियम को RP लिख देता हूँ, एंड रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न को RQ लिख देता हूँ। सो उसने कहा कि जो फॉर्मूला बनेगा, मैं एक्सू मैंने आपको समझा रहा हूँ, जो फॉर्मूला मेरा है वो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल टू रिस्क फ्री प्लस रिस्क प्रीमियम। इस तरीके से मैं अपना प्राइस कैलकुलेट करता हूँ विदाउट अ डिपोजिट। So my required rate of return from this shoot or from this jump is based this formula. Any doubt? You're all a producer. Are you convinced with this 120 breakup? Anything जो आपको लगता है which is not logically making sense, practically ये गलत है, ऐसा नहीं होता है, कुछ भी तो पूछिए। मैंने कोई स्लाइड दिखाई, कोई फॉर्मूला आपको नहीं, सारा मैं आपको सारा प्रैक्टिकल साइड से करा रहा हूँ। कुछ पूछना है लास्ट टाइम? रिस्क की वैल्यू कौन डिसाइड करता है? रिस्क की वैल्यू वो निकालना भी सिखाऊंगा। ओके। RF कैसे कैलकुलेट करते हैं, RP कैसे, ये 100 रुपए कैसे आया, 20 कैसे आया, ये पावर मैं सब सिखाऊंगा अभी। ये कैलकुलेशन वी आर हेडिंग टुवर्ड्स दैट,
बट बिफोर आई मूव टूवर्ड्स द कैलकुलेशन आई वांट यू टू अंडरस्टैंड कि कॉन्सेप्ट क्या है। आप वो फाउंडेशन पे एग्री हो जाओगे तो मैं कैलकुलेशन सिखाना शुरू करूंगा। सो इट्स अ फेयर पॉइंट। यही फजलू भी पूछा था कि वो 100 कैसे आया। आप पूछ रहे हो 20 कैसे आया, 20 क्यों है, 25 क्यों नहीं है, 80 क्यों नहीं है, तो ये मैं सिखाऊंगा। बट आप कन्विंस्ड हो कि अगर एक स्टंटमैन, मैं अगर एक स्टंटमैन हूँ और मैं आपकी शूट पे आके आपके फिल्म के सेट्स पे आके अगर एक जंप कर रहा हूँ फॉर जो आपको शूट चाहिए, जो सीन चाहिए, उस जंप के लिए मेरा फेयर आस्क है कि मैं कितना पैसा मांगूंगा। मैं आपको कह रहा हूँ मैम वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है। 1, आपकी शूट पे आया तो मैं जो कमा लेता वो मैं छोड़ कर आया हूँ, पहले मुझे वो तो दो, प्लस अब जितना रिस्क के काम आप मुझसे कराएंगे उस रिस्क का कॉम्पनसेशन मुझे दे दो। आई एम सेटिस्फाइड। आर यू कन्विंस्ड विद दिस? Yes, yes, it happens. But okay. मैं एक और एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल आपकी पेड लीव्स एग्जॉस्ट होगी आपके ऑफिस में, ठीक है। अब मैं आपको बोलता हूँ आप मेरे लिए कुछ 2 दिन का एक प्रोजेक्ट कर दो, इंटर्न प्रोजेक्ट कर दो। फॉर दोज 2 days यू नीड टू स्पेंड फुल डे इनटू दिस प्रोजेक्ट। तो आप ऑफिस नहीं जा पाओगे, आप ऑफिस से काम नहीं करोगे, आप छुट्टी ले लो। तो आप कहेंगे सर मेरी पेड लीव तो खत्म हो गई है। तो मैंने कहा ठीक है आप विदाउट पे ले लो। तो लेट्स आपको पर डे 100 रुपीज सैलरी है, तो आपको 2 दिन का 200 रुपीज का लॉस हो जाएगा। तो आप मुझसे जो एक्सपेक्ट करोगे इस प्रोजेक्ट का रिटर्न कि मुझे कितना पैसा मिले, एटलीस्ट 200 रुपीज तो एक्सपेक्ट करोगे ना पारोला मुझसे। क्योंकि अगर आप इस प्रोजेक्ट में कोई भी एफर्ट नहीं मारते और अपने ऑफिस में नॉर्मल बैठ के काम करते तो भी तो आप 200 रुपीज कमाए रहे होते हैं। वो आपका आरएफ है। नहीं, वो तो मेंशन, मतलब वो तो अंडरस्टूड है कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हम निकाल सकते हैं, बिकॉज व्हाट वी आर अर्निंग इन अ डे, व्हाट वी आर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इफ वी आर। हाँ, अभी ये फोकस मत करो कि निकाल सकते हैं कि निकाल सकते हैं, वो मैं सिखाऊंगा आपको, दोनों सिखाऊंगा। अभी फोकस ये करो कि आपको समझ आया कि ये फॉर्मूला का लॉजिक क्या है, इस फॉर्मूले की जो कंपोनेंट्स है उसका मैथमेटिकल कैलकुलेशन बाकी है पारुल। यस। ठीक है, 30 सेकंड दे रहा हूँ, इसको एब्जॉर्ब कर लीजिए। कुछ पूछना है तो बताइए, अदरवाइज आई विल मूव अहेड। हाँ जी, कोई डाउट? सर अगर 160 का एग्जांपल लेते हैं तो इसमें रिस्क 160 प्रीमियम पे 60 हो जाएगा। आ रहा हूँ 160 पे। ओके। अब 160 का ब्रेकअप लेते हैं। तो 160 में अगेन मैंने कहा 100 रुपीज इज सेम, ठीक है, एंड देन 60। और इस 60 का ब्रेकअप क्या है? 20 प्लस 40। नाउ व्हाट डज दिस मीन? अब आप चाहे मैं कह रहा हूं आपको कि आप चाहे मुझे 3rd फ्लोर से जंप कराओ, चाहे आप मुझे 1st फ्लोर से जंप कराओ, दोनों ही केस में मुझे वो एक दिन का अपना 100 रुपए की जो अर्निंग है वो छोड़ के आपके पास आना पड़ेगा। तो हेंस मेरा आरएफ तो सेम रहेगा ना, वेदर आई जंप फ्रॉम अ 3rd फ्लोर, वेदर आई जंप फ्रॉम द 1st फ्लोर, द आरएफ विल रिमेन सेम। मनमीत, ये क्लियर है? यस सर, यस सर। फर्स्ट फ्लोर से 3rd फ्लोर जंप करने में मनमीत क्या चेंज हो रहा है? रिस्क चेंज हो रहा है। रिस्क चेंज हो रहा है और रिस्क ज्यादा रिस्क बढ़ का रहा जो है। करेक्ट, रिस्क बढ़ रहा है, और रिस्क बढ़ रहा है तो रिस्क का जो कॉम्पोजिशन है वो इंक्रीज होना चाहिए ना, आरएफ थोड़ा चेंज होगा।
करेक्ट, इसलिए ये 20 वाला कंपोनेंट इंक्रीज होके 60 हो गया है, बट ये RF सेम रहा है। समझ आया? यस सर। हाँ जी, कोई डाउट? तो इसमें सर रिस्क प्रीमियम जो है 60 हो जाएगा ना? दोबारा पूछो। इसमें रिस्क प्रीमियम सर 60 हो जाएगा ना? करेक्ट, करेक्ट। करेक्ट, 60 हो जाएगा। मनमीत? सर जैसे ये 120 है, तो मतलब जो प्रोड्यूसर है वो एक्स से बोल रहा है कि आप मुझे इसमें ब्रेकअप समझाओ कि आप कैसे मतलब इसको डिफाइन कर रहे हो कि जो 100 रुपये अगर मैं वहां पे रहता तो वो तो मुझे मिलता ही मिलता, बट मैं आपके पास आ रहा हूँ तो मैं रिस्क उठा रहा हूँ, इसलिए मैं 120। तो मतलब पहले से डिफाइन था ना प्रोड्यूसर को कि मैं तुम्हें इतना दूंगा। ये थोड़ा सा सर समझ नहीं आ रहा। क्वेश्चन नहीं समझ आया मुझे आपका। सर जैसे कि प्रोड्यूसर ने एक्स को बोला कि मैं तुम्हें 120 दूंगा जंप करने के, बट अब इसमें जो प्रोड्यूसर ने प्रोड्यूसर नहीं है बोला, वही। प्रोड्यूसर ने नहीं बोला, एक्स ने अच्छा, वो बोला कि एक्स। मुझे 120 चाहिए। अच्छा अच्छा अच्छा। तो फिर प्रोड्यूसर उससे ब्रेकअप मांग रहे हैं कि ब्रेकअप हाँ, बताओ 120 क्यों करेक्ट, चाहिए। करेक्ट। ओके सर, अंडरस्टूड। और मैं वो एक्सो में आपको ये ब्रेक, आप मनमीत आप प्रोड्यूसर हो, मैं एक्सो में आपको ये ब्रेकअप समझा रहा हूँ। इसको आप इसमें आपको कुछ इलॉजिकल लग रहा है तो आप मुझे बताओ। नहीं सर, बस थोड़ा सा यही कंफ्यूजन है। ठीक है। एनीबडी, एनी डाउट? ठीक है, लास्ट टाइम अगर कोई डाउट नहीं है, सो अभी अभी ओके टू कंक्लूड दैट रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल टू रिस्क फ्री प्लस रिस्क प्रीमियम। अब मैं आपको इसका एग्जांपल इक्विटी मार्केट से देता हूँ। सो दीपक, मान लो आपने 10 लाख रुपीस SBI FD में लगाए हुए हैं, ठीक है, और वहां से आपको 7% का रेट ऑफ रिटर्न आ रहा है। मैंने कंपनी स्टार्ट करी है, ठीक है दीपक, मैंने कहा कि आप अपने 10 लाख रुपीस का FD ब्रेक करके मेरी कंपनी में इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट कर दो। आपका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न दीपक, आप मुझसे कितना रिटर्न एक्सपेक्ट करोगे अगर आपको इक्विटी में इन्वेस्ट करना है मेरी कंपनी में, और SBI FD से 10 लाख रुपीस ब्रेक करके यहाँ पे लाना होगा? At least more than 7. तो आपके लिए 7 प्लस समथिंग हो गया रिटर्न, सॉरी Yes. 7 प्लस समथिंग हो गया। ये 7 RF है आपके लिए, वही अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो यहाँ पे 100 रुपए थी पिछले Yes. एग्जाम्पल में। ठीक है, किसी को भी डाउट यहाँ तक? एनीबडी हु हैज अ डिफरेंट व्यू vis-a-vis जो दीपक ने बोला? अगर आप भी दीपक की जगह 10 लाख रुपीस FD में ओन करते हैं, and if I'm asking to break that FD, I'm not asking you have an option to break that FD and bring that money to the equity share, into equity investment of particular company.
So what you would expect, at least 7 plus something? हाँ या ना? Any question on this? ठीक है, तो इनके स्लो और 7 प्लस, अब प्लस क्या है? प्लस वो आरपी एक्सपेक्ट करेगा। दीपक मैं आपको बोलूं ये कंपनी बहुत रिस्की है, बहुत रिस्की है, तो आप 7% प्लस मोर एक्सपेक्ट करोगे? वीजा अगर कंपनी अगर स्टेबल है, लेस रिस्की है, तो आप फिर ओके कि ठीक है मेरा पैसा कम रिस्क में है, तो मैं कम रिटर्न भी जस्टिफाइड करता है। Yes. सो आर यू कन्विंस कि ये जो इक्वेशन मैंने बनाई थी इक्विटी में भी इसी तरीके से वर्क करती है? Yes. ठीक है, यहां तक किसी को भी कोई डाउट? So we are concluding required rate of return is equal to RF, which is risk-free rate of return, which is nothing but an opportunity cost. RF, risk-free rate of return, is that return for which you do not have to take any risk. आप आराम से अभी भी कमा रहे हो वो, जैसे SBI FD है। SBI FD में दीपक कोई रिस्क नहीं लेना पड़ता। SBI is a most safest bank from an Indian market perspective, correct? तो अगर वहां से दीपक को 7% मिल रहा है तो उसके लिए वो घर पे बैठ के आराम से एनुअली 7% रिटर्न कमा रहा है। तो अगर वो वहां से ब्रेक करके मेरी इक्विटी कंपनी में, मेरे इक्विटी शेयर में लेके आ रहा है, तो ही विल से 7 प्लस समथिंग, एंड प्लस समथिंग इज आरपी व्हिच इज लिंक्ड टू द रिस्क। हायर दिस, हायर इज द अमाउंट। सो अब आरपी पे आते हैं कि आरपी निकालना है तो कैसे निकालना है। ठीक है, जस्ट मैं छोटा सा इसका ब्रीफ पार्ट करूंगा एंड देन रिमेनिंग विल कवर इन द नेक्स्ट क्लास, बिकॉज ये आई डोंट वांट टू ब्रेक दिस पार्ट। जो आरपी है इज अ कॉम्पनसेशन फॉर द रिस्क, hence we need to understand what is risk. क्या होता है रिस्क? रिस्क इज अनसर्टेनिटी। रिस्क के दो टाइप्स होते हैं। फर्स्ट सिस्टमिक रिस्क, सिस्टमैटिक रिस्क बोलते हैं इसको। सेकेंड अनसिस्टमैटिक रिस्क। अनसिस्टमिक रिस्क होता है जो माइक्रो इन नेचर होता है, इंडिविजुअल होता है, कंपनी स्पेसिफिक होता है। सिस्टमिक रिस्क होता है विच इज मैक्रो, इंडस्ट्री और इकोनॉमी स्पेसिफिक। एग्जाम्पल समझते हैं। ये जो कोविड पेंडेमिक इम्पैक्ट है ये सिस्टमिक रिस्क है, पूरे सिस्टम पे है।
whether you invest into shares of Reliance, whether you invest into shares of Tata Motors, whether you invest into shares of SBI, any sector, any industry you invest, you are impacted as the equity shares of those companies will get impacted because of those pandemic impacts. So is systemic risk clear? What do you mean systemic risk? Macro जो इंडस्ट्री ओवरऑल इकोनॉमी पे इम्पैक्ट करता है वो सिस्टमिक रिस्क होता है. अनसिस्टमिक रिस्क होता है जो इंडिविजुअल टू पर्टिकुलर कंपनी है. मतलब रिलायंस में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, सो इफ बिकॉज ऑफ दैट जो रिस्क क्रिएट होता है वो अनसिस्टमिक है, स्पेसिफिक टू पर्टिकुलर कंपनी है, वो मैक्रो इशू नहीं है. हाँ जी, यहाँ तक कोई डाउट? सर सिस्टमेटिक रिस्क वो हुआ जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते. दोबारा रिपीट कर. सिस्टमेटिक रिस्क वो हुआ जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते. हाँ, जो ऐसे भी बोल सकते हो. सिस्टमिक रिस्क वो है, मैं कंट्रोल वर्ड यूज नहीं करूंगा, मैं बोलूंगा हम इसको अवॉइड नहीं कर सकते. वी कैन नॉट अवॉइड. नेचुरल इम्पैक्ट के थ्रू हो रहा है. नहीं, मैं वो वर्ड भी यूज नहीं करूंगा. ठीक है, ये सब बहुत बहुत डिबेटेबल वर्ड्स है. करेक्ट. अब कोविड है कि अब देयर इज टू स्कूल ऑफ थॉट. ये जो कोविड है ये नेचुरल है कि मैन मेड है. सो आई डोंट वांट टू वेस्ट टाइम इनटू दैट डिस्कशन, इसलिए मैं वो वर्ड अवॉइड कर रहा हूँ. तो अनसिस्टमिक है. अनसिस्टमिक इज आई कैन अवॉइड. कैसे अवॉइड कर सकता हूँ कि अगर रिलायंस में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है और मुझे वो रिस्क में पार्टिसिपेट नहीं करना है, मैं रिलायंस का शेयर्स बेच के टाटा के शेयर्स में चला गया, तो अवॉइड हो गया. बट कोविड जो रिस्क है, ठीक है, अगर मैं इक्विटी में इन्वेस्ट करता हूँ, चाहे मैं रिलायंस करूँ, चाहे टाटा करूँ, चाहे इन्फोसिस करूँ, चाहे 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 एसबीआई करूँ, कोई भी कंपनी के स्टॉक में मैं इन्वेस्ट करूंगा तो मुझे वो अवॉइड नहीं हो सकता. हेंस वो सिस्टमिक रिस्क है. कोई डाउट? हाँ जी, कोई डाउट? नो सर. ठीक है. सो ये दो टाइप्स ऑफ रिस्क होते हैं जो हम कंसिडर करेंगे फॉर द कैलकुलेशन ऑफ आरपी. ठीक है. एंड जो हमने कंक्लूड किया है कि आर क्यू इज इक्वल टू आर एफ प्लस आरपी, ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना. और आरपी इज डिपेंडेंट ऑन व्हाट? इज डिपेंडेंट ऑन द रिस्क. और रिस्क के दो टाइप्स हैं, ये पीस इंपॉर्टेंट है बिकॉज नेक्स्ट क्लास में मुझे ये चाहिए फाउंडेशन के लिए. लास्ट टाइम एनी डाउट? Can we say that systematic risk can be the part of opportunity cost? Systemic risk is part of opportunity cost. May or may not be, na, Parul, not necessary. Na? It's not always कि आपका वो systemic risk opportunity cost का part होगा. बट आप जहां पे भी हो, आप इम्पैक्टेड हो उससे, आप बच नहीं सकते उससे.
रिस्क फ्री जो है वो फिक्स्ड रहता है क्या? फिक्स्ड रहता है। जैसे बताओ। 100 जो है तो वो 100 ही रहेगा, या फिर 100 क्यों आया ये रिस्क फ्री? हाँ वो देख सिखाऊंगा इसको मैं, रिस्क 100 कहाँ से है वो सिखाऊंगा। इसको रिस्क फ्री क्यों बोला जा रहा है? इसमें रिस्क नहीं है, क्यों नहीं है? हेलो, हाँ सॉरी फजलू। ये रिस्क फ्री क्यों बोला जा रहा है? इसमें रिस्क क्यों नहीं है? अगर आपने एसबीआई की एफडी में इन्वेस्ट किया है तो उसमें आप क्या रिस्क ले रहे हो? कोई रिस्क ले रहे हो आप उसमें? नहीं नहीं, आरएफ को रिस्क फ्री जो बोला जा रहा है सो। अरे मैं जो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ पहले उसका आंसर करो। तुमने एसबीआई की हाँ एफडी सर, में 50,000 रुपए लगा के रखे हैं, उसमें कोई रिस्क है? हो सकता है। क्या हो सकता है बताओ मुझे, क्या रिस्क है? हो सकता है उसका इन्फ्लेशन रेट लो हो जाए, जिसकी वजह से मुझे वो मुझे वो क्या हो जाएगा? एक्सपेक्टेड रिटर्न कम मिल सकता है। क्यों कम मिल सकता है? जब एसबीआई ने प्रॉमिस किया आपको एफडी बॉन्ड पे लिख के 7% देंगे तो 7% ही देता है ना वो, क्योंकि इन्फ्लेशन कम ज्यादा से रिटर्न कम कर देता है आपका। ऐसा नहीं होता है क्या सर, एफडी में? तो फिर क्यों बोल रहे हो फिर आप? नहीं। एसबीआई ने जो आपको प्रॉमिस किया वही देगा ना आपको। हम्म। तो रिस्क क्या है? नहीं सर। तो जो कोई रिस्क नहीं है तो रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न है। दिस इज द रिटर्न जिसके लिए आपको कोई रिस्क लेना नहीं पड़ रहा है। हाँ, ठीक है। तो फिर वहां पर आरपी का क्या यूज? अरे आरपी का क्या यूज है? वो आरएफ में क्वेश्चन है कि आरपी में क्वेश्चन है? आरएफ क्लियर हो गया। हाँ। हाँ, अब आरपी है कि रिस्क का कॉम्पनसेशन है। जब आप रिस्क लोगे तो उस रिस्क का प्रीमियम मिलेगा। ये जो एग्जांपल हमने डिस्कस किया था, जो दीपक ने, अगर तुम्हारा एफडी है एसबीआई में 7% पे, मैंने कहा वो एफडी तोड़ के मेरी कंपनी में इक्विटी में इन्वेस्ट कर दो, तो तुम कितना रिटर्न एक्सपेक्ट करोगे? मोर देन 7%। ठीक है, तो 7% जो तुमने करा वो तुम्हारा रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न होगा, और जो मोर तुम एक्सपेक्ट करो वो आरपी है। वो निकालना भी हम्म। सिखाया नहीं है, सिखाऊंगा कल, आप मतलब नेक्स्ट क्लास में। क्लियर सर। लास्ट टाइम एनी डाउट बिफोर वी क्लोज? ठीक है, तो इन केस नो, ये जो मैंने पोर्शन हाईलाइट किया हुआ है स्क्रीन पे, ठीक है, ये पोर्शन प्लीज रिवाइज कर लीजिएगा। ये नेक्स्ट सेशन में जरूरत पड़ेगा। ठीक है, तो मैं इसी को फाउंडेशन करके आगे बढ़ूंगा नेक्स्ट क्लास में। और नेक्स्ट क्लास में हम कंप्यूटेशन करेंगे, आरपी कैसे निकालते हैं, आरएफ कैसे निकालते हैं, एंड देन फिर इसको कॉस्ट ऑफ इक्विटी से कैसे लिंक करते हैं, फिर डिस्काउंटिंग रेट से कैसे लिंक करते हैं, करके फिर आपका वैल्यूएशन मॉडल क्रिएट होगा। ठीक है, चलिए, थैंक्स, विल कनेक्ट इन द नेक्स्ट क्लास। आपका वेडनेसडे को क्लास होगा, तो दामिनी विल सेंड यू द कंफर्मेशन एज वेल। ठीक है, चलिए, थैंक्स। हेलो हाँ फजलू। सर, मैं ये क्वेश्चन पूछ रहा था कि किसी शेयर का प्राइस जो लो हो जाता है
इक्विटी शेयर का प्राइस, तो उसे बेचते क्यों है, उसे सेल क्यों कर देते हैं? वो आगे आएगा, अभी मैं वहां नहीं पहुंचा। नहीं, कॉमन इंफॉर्मेशन के लिए करेंगे कि उसे करेंगे अभी पहले थोड़ा सा दो टॉपिक कंप्लीट होने दो, फिर ये क्वेश्चन को लेके आएंगे। अभी लेके आएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। ओके सर, ओके। ठीक है, चलिए, थैंक्स, बाय।